ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سب کے سامنے قبول کریں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آیت تڑپ کر بولی، پر میر حماد پورے خاندان کے سامنے اس نکاح سے صاف مکر گیا جو اس نے کچھ دن پہلے چھپ کر کیا تھا۔ آیت کی ماں نے آیت کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن میر حماد ڈیرے پر تھا تو ملازم نے اسے بتایا کہ بڑے سائی آیت کو سزا دینے کے لیے اس کا نکاح کسی ملازم سے کر رہے ہیں۔ یہ سنتے وہ فوراً حویلی بھاگا۔ وہ آیت سے نفرت ضرور کرتا تھا پر وہ اس کی غیرت تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو نکاح شروع ہو چکا تھا۔ آیت کو نکاح پر نکاح قبول کرتے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوتا آیت کی جانب بڑھا اور وہ اس وقت گاؤں کے ڈیرے پر موجود تھا اور اپنے ماتحتوں کو نئے منصوبے کے حوالے سے ہدایات دے رہا تھا۔ یہ منصوبہ اس زمین کی فصل کے متعلق تھا جو اس کے والد نے گاؤں میں حال میں ہی خریدی تھی۔ وہ تمام تفصیلات اور حکمت عملی پر گفتگو کر رہا تھا تاکہ کام بہتر انداز میں انجام دیا جا سکے۔ وہ فصل کی بہتر پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقوں کے استعمال کے بارے میں ان کی رائے بھی لے رہا تھا۔ محفل کے برخاست ہونے کے بعد وہاں چائے کا دور چلا۔ وہ چائے کی گھونٹ لے رہا تھا جب وہاں زیاد آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت ماتھے پر بل اور ناک پر غصہ لیے گھومتا رہتا تھا۔ اسے ہر کسی سے مسئلہ ہوتا تھا اور جب کوئی کامیابی میں اس سے آگے نکل جاتا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جو ہی وہ ڈیرے پر آیا تو اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میر حماد جو اس وقت ریلیکس ہو کر چائے پینے میں مصروف تھا، اس کے آرام میں خلل پڑ گیا۔ وہ چائے چھوڑ کر وہاں آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم زیاد؟ عقل ٹھکانے پر ہے تمہاری؟ وہ شدید غصے میں اسے توڑ پھوڑ کرتا دیکھ رہا تھا۔ اب ڈیرے کے لوگ وہاں آ کر زیاد کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے تاکہ وہ مزید کوئی نقصان نہ کر سکے۔ اس پر ایک جنون سوار تھا۔ زیاد کے چہرے سے غصے کی شدت صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اضطراب تھا جو طوفان کے آنے سے پہلے سمندر میں دکھائی دیتا ہے۔ اس نے اپنا آپ چھڑایا اور میر حماد کے قریب آنے لگا۔ قدموں کی دھمک اور کرخت آواز سے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ تم نے وہ زمین کیوں خریدی؟ زیاد نے قریب آتے ہی غصے سے کہا۔ آواز میں ایسا تنتنا تھا کہ ہر کوئی متوجہ ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وہ زمین لینا چاہتا ہوں، پھر تم نے وہ زمین خریدنے کی جرت کیسے کی؟ اس کے سامنے موجود میر حماد نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی لیکن کوئی جلد بازی میں جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا غصہ قابو میں رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، زیاد، میں نے وہ زمین خریدی کیونکہ میں خود کو اس پر بہترین کام کرنے کا اہل سمجھتا تھا، جبکہ تم سے ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ تم کوئی کام پرفیکٹ کر سکتے ہو۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن اس کی بات کا مفہوم بڑا ہی تلخ اور مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ زیاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا لیکن اس کی مٹھیوں کی گرفت بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی غصے میں ہے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ میر حماد، منہ کے بل گرو گے زمین پر، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حماد نے ہنستے ہوئے اسے جاتا دیکھا تھا۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اب وہ دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ زیاد غصے میں گھر آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر شے کو رون ڈالے، ہر چیز کو تباہ کر دے، جیسے کوئی طوفان آ کر سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ جیسے کوئی طاقت اسے قابو کرنے کے بجائے اور بھی بڑھا رہی ہو۔ میر حماد سے اسے بچپن سے نفرت تھی۔ اسے ہر قدم پر کامیاب ہوتا دیکھ کر وہ حسد میں آ جاتا، اور آج حسد کی آگ اس کے چاروں طرف پوری شدت سے بھڑک رہی تھی۔ وہ کمرے میں ریوالونگ چیئر پر جھولتا ہوا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھا جب اس کی چھوٹی بہن وہاں آ گئی۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت زیاد گھر پر موجود نہیں تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔
अम्मा ने उसकी फिक्र में आयत के हाथ खाना भिजवाया था। भाईजान खाना खा लें। वो खाने की ट्रे हाथ में थामे कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर अंदर चली आई। आज उसने आने से पहले दस्तक नहीं दी थी। क्यों आई हो तुम ये खाना लेकर? कहा था मैंने कि लेकर आओ। आने से पहले तुमने मुझसे इजाज़त ली? शर्म है तुम में या नहीं? तुम्हारी नज़र में बड़े भाई की अहमियत है या नहीं? वो उससे चीख कर पूछ रहा था। अब अपना गुस्सा वो उस मासूम पर निकाल रहा था जिसकी ना तो कोई गलती थी और ना वो ये तक जानती थी कि आखिर ज़ियाद इस वक्त इतने शदीद गुस्से में क्यों है। वो तो उसकी फिक्र में आई थी, मगर ज़ियाद उल्टा अपना गुस्सा उसी पर उतार रहा था। वो सहम कर रह गई। भाईजान, वो अम्मी ने कहा था मैं आपको खाना दे आऊं। दरवाज़ा खुला था तो मैंने नॉक नहीं किया। सॉरी। वो सर झुकाकर शर्मिंदगी से बोली। उसे ये ऊंचा लहजा तकलीफ देता था। ज़ियाद ने उसके हाथ से खाने की ट्रे झपट कर ली। जाओ यहाँ से, वो इस सर्द लहजे में बोला तो वो सर झुकाए उदासी से वहां से चली गई। उसका भाई हमेशा उसे यूं ही डराता था, उस पर अपना गुस्सा उतारता था। उसने कभी आयत को अपनी बहन समझकर ट्रीट नहीं किया था, बल्कि वो उसके साथ मुलाजमा जैसा सलूक करता। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हमाद, तुम्हें अर्श से फर्श पर तो मैं गिराऊंगा। वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए सोचने लगा, मगर नहीं जानता था जो होना था उसकी सोच के बरक्स था। कुछ दिन बाद जब ज़ियाद का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो हमाद को तड़पाने के लिए मंसूबा बनाने लगा। हमाद उसका कज़न था, उसके ताया का बेटा, मगर उन सब के अपने ताया से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। दौलत, जायदाद और मादा परस्ती ने उन सब के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत और हसद पैदा कर दिया था। वो सब एक दूसरे से मालो दौलत की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बचपन से ज़ियाद लाउबाली और लापरवाह तबीयत का मालिक था। उसने कभी किसी शय को संजीदगी से नहीं लिया था। वो बस अपने बाप के पैसों पर अयाशी करता, उन्हें फजूल खर्ची में उड़ाता था। कारोबार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसे काम करने का शौक था। अबाव अजदाद जद्दी पुश्ती अमीर थे। ज़ियाद घर में सबका लाडला था। उसे अपनी मर्जी से हर काम और फैसला लेने की आज़ादी हासिल थी, जबकि उससे 8 साल छोटी आयत अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। बचपन से उस पर पाबंदियां थीं। वो अपने लिए खुद कोई फैसला नहीं कर सकती थी। आयत को इस घर में कोई प्यार नहीं करता था। सबका प्यार सिर्फ ज़ियाद के लिए था, इसलिए क्योंकि वो एक लड़का था। उनके घराने में बेटी पैदा होने को बुरा और बेटा पैदा होने की बरकत और अच्छा समझा जाता। मुख्तसर ये कि वो लोग दकियानूसी सोच के मालिक थे। आयत को उसकी माँ समेत हर कोई मुलाजमा की तरह ट्रीट करता। वो घर के काम काज ही करती थी। उसके अलावा उसे घर से बिला वजह बाहर निकलने या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किस्म का कुछ नया करने की इजाज़त नहीं थी। उसे सिर्फ एफए तक तालीम दिलवाई गई। वो लोग उसके आगे पढ़ने के भी सख्त खिलाफ थे। अम्मा, इसको आगे ना पढ़ाना, ऐसा ना हो कहीं नया चांद चढ़ा दे जैसे पुप्पो ने चढ़ाया था। ज़ियाद नफरत से बोला। उसे औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाई गई थी और आज भी उसके दिल में औरत ज़ात के लिए हकारत थी। ये सब सुनकर आयत को उस वक्त बहुत अफसोस हुआ। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर जो फैसला घर के मर्द करते थे उस पर हर औरत को सर झुकाना ही पड़ता। वो कुछ नहीं बोल सकी थी। उसे अपनी हिरा पुप्पो के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई। वो उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन अपनी पुप्पो के साथ गुजरा हुआ वक्त उसे याद था। वो आयत को बहुत प्यार करती थी, उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। इसलिए आयत को सबसे ज़्यादा उनसे ही मोहब्बत थी। वो उन्हें माँ की तरह समझती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अचानक पुप्पो घर से कहाँ चली गई थी, क्यों उसे छोड़ गई थी इन जालिम लोगों में। काश वो उसे भी अपने साथ ले जाती। अक्सर वो सोचकर रोने लगती थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई थी और उनके जाने के पीछे की मुकम्मल वजह क्या थी। आज तक
वो पलट कर नहीं आई थी। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए ज़ियाद अपने दोस्तों के साथ शहर जाने का प्लान बनाने लगा। वो खुद गाड़ी ड्राइव करता अपने दोस्तों को पिक करने जा रहा था, जब एक बार फिर उसकी निगाह रास्ते में जाते हमाद पर पड़ी। मीर हमाद ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बातें करने में मसरूफ़ था। उन दोनों के हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे, जिसे वो गाड़ी में रखवा रहे थे। मीर हमाद ने अपनी बहन उमामा के हाथ से भारी शॉपिंग बैग्स पकड़े और ख़ुद उन्हें गाड़ी में रख दिया। वो और उसकी अम्मी अब्बू अपने बहन भाइयों और ख़ानदान में सबसे अलग थे। बेटियों से वो बहुत प्यार करते थे, औरत की इज्जत करते थे। मीर हमाद भी अपनी बहन उमामा पर अपनी जान छिड़कता। उमामा की कुछ दिनों में शादी थी, इसीलिए वो लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। उमामा को देखकर ज़ियाद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसका दिमाग एक नया मंसूबा बनाने लगा। वो सोच चुका था उसे हमाद को कैसे तड़पाना है, किस तरह अजियत पहुंचानी है और किस तरह गांव में उसकी बनी हुई इज्जत को जिल्लत में तब्दील करना है। उन दोनों से निगाहें हटाकर वो अपनी गाड़ी भगा कर ले गया। 2 दिन उसने शहर में गुजारे और फिर हवेली आ गया। अपने ख़ास आदमियों को बेसमेंट के कमरे में बुलाया और चोरी छुपे उनके साथ मिलकर मंसूबा बनाने लगा। उमैमा की शादी से पहले उसे उठाओ और मेरे शहर वाले घर में पहुंचा दो। इस बात की किसी को भी भिनक ना पड़े। अपने पीछे कोई सबूत, निशान और सुराग नहीं छोड़ना तुम्हें। ऐसे अगवा करो कि उसे मीर हमाद ढूंढने में अपनी सारी दौलत और जिंदगी वार डाले, लेकिन उसे खबर तक ना हो कि उसकी बहन आखिर गई कहाँ और उसके साथ क्या हुआ। पूरे गांव में ये खबर फैलानी है कि मीर हमाद की बहन उनके जुल्मों सितम से तंग आकर अपने आशिक के साथ भाग गई। ज़ियाद उन्हें प्लान समझा रहा था। उसके आदमी गौर से उसे सुन रहे थे। वो लोग लंबे कद और बड़ी जिसामत के मालिक गुंडा टाइप लोग थे, जिन्हें देखकर ही इंसान दहशत में आ सकता था। उन्होंने ज़ियाद की हर बात से इत्तफाक किया। ज़ियाद अपनी तरफ से मुतमईन हो गया और उसका हवेली से 1 हफ्ते तक अब निकलने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था मीर हमाद का शक उसकी तरफ जाता, क्योंकि इस गांव में हमाद का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ ज़ियाद ही था। ज़ियाद सिकंदर के आदमियों ने उमामा पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। वो बस अब मौके की तलाश में थे, और वो मौका उन्हें उस दिन मिला जब उमामा अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही थी। वापसी पर जब उमामा को उन्होंने तन्हा पाया तो फौरन उसके मुंह पर क्लोरोफार्म वाला रुमाल रख दिया और उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। 1-2 मिनट की मज़ाहमत के बाद वो बेहोश होकर उनके बाजुओं में गिर गई। उसे गाड़ी में डालकर वो फौरी वहां से निकल गए थे। ये इलाका सुनसान था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। उमामा की सहेलियां भी अब घर जा चुकी थीं और उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि उमामा आखिर कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ। ज़ियाद के आदमियों ने बड़ी ही राजदारी से उमामा को लाहौर में उसके नए घर में शिफ्ट कर दिया। ज़ियाद ने वहाँ 2-3 मेड्स का भी इंतज़ाम कर लिया था, जिन्होंने उमामा पर नज़र रखनी थी। मालिक, आपका काम हो गया है, उसके एक आदमी ने उसे आकर खुशखबरी सुनाई थी। वो अपनी जीत का जश्न मनाने का सोच रहा था, मगर वो चाह कर भी इस हवेली से नहीं निकलना चाहता था। इस बार वो बहुत मोहतात रहना चाहता था, ताकि हमाद उसे कभी ना पकड़ सके। इसलिए वो हवेली के अंदर रहकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगा। उसने अपने बाप को भी इस बात की खबर नहीं होने दी थी कि उसने हमाद को तड़पाने का कैसा भयानक मंसूबा बनाया है और उस पर अमल भी कर लिया है। जैसा ज़ियाद ने प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। गांव में ये खबर फैल गई थी कि उमामा शादी से 3 दिन पहले अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। गांव में मीर हमाद और उसकी फैमिली की बहुत बेइज्जती हो रही थी। मीर हमाद की हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी। उसे अपनी बहन की मासूमियत पर पूरा यकीन था कि वो किसी के साथ कभी भाग नहीं सकती, वो उन्हें रुस्वा नहीं कर सकती। वो अपनी बहन का बेस्ट फ्रेंड भी था। उसकी बहन उससे हर बात शेयर करती थी।
اس نے کبھی حماد کو اپنی کسی سے پسندیدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، حماد بھائی اب جس سے بھی میری شادی کریں گے میں اسے دل سے قبول کروں گی، اور میں جانتی ہوں آپ میرے لیے مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ اس کی بہن نے ہمیشہ عزت سے اس سے کہا تھا، اور وہ اپنی بہن کی بات سن کر خوش ہوتا تھا کہ وہ اسے اتنی اہمیت دیتی ہے۔ اس نے اپنی پسند سے خاندان سے باہر امامہ کا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ لڑکا بہت اچھا، نیک اور شریف تھا۔ اس کی چوائس امامہ کو بھی پسند آئی تھی اور وہ اس شادی پر خوش تھی، مگر پھر 3 دن پہلے اس کا گھر سے شاپنگ کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلنا اور واپس نہ آنا، اس کے بعد گاؤں میں یہ خبریں گردش کرنا کہ امامہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اپنی بہن پر مر کر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ بابا یہ ضرور کسی دشمن کی چال ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ سلیمان صاحب بھی اس کی بات سے متفق نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے امامہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنے سب ملازموں کو کام پر لگا دیا۔ گاؤں کی پولیس اسٹیشن کی پولیس کے لوگوں سے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، اسی لیے وہ بھی ان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ پولیس اور ان کے خاص آدمی امامہ کو تلاش کرنے میں دن رات ایک کر رہے تھے۔ حماد کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بہن کا اچانک یوں کہیں چلے جانا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے دشمنوں نے اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی یہ تڑپ زیاد سے بھی محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بابا میں چاہتا ہوں زیاد اور اس کے گھر والوں سے بھی تفتیش کی جائے اور ان کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کیا جائے۔ میر حماد کی بات سن کر میر سلیمان حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے اور اعتراض کیا کہ تم ان لوگوں پر شک کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ہمارے اپنے ہیں، لاکھ برائیاں سہی لیکن وہ اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ امامہ ان کی بیٹیوں کی طرح ہے۔ سلیمان صاحب کے سمجھانے پر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اسے زیاد پر ہمیشہ ہی شک رہتا تھا، اسی لیے اب بھی وہ اسے شک کے دائرے میں لا رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس سے کہہ رہا تھا کہ امامہ زیاد کی کزن ہے، اس کی بہنوں جیسی۔ وہ اس طرح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ اتنا نہیں گر سکتا کہ حماد سے حسد میں آ کر امامہ کو غائب کر دے۔ اس لیے وہ تھوڑا نرم ہوا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی تسلی کے لیے تفتیش کروانا چاہتا تھا۔ حماد صاحب، زیاد صاحب تو بہت دنوں سے حویلی سے نہیں نکلے، پتہ چلا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ کہیں آئے گئے نہیں ہیں۔ ایک ملازم نے آ کر حماد کو زیاد کے بارے میں بتایا، جسے سننے کے بعد حماد نے زیاد کو شک کے دائرے سے نکال دیا اور اب اس کا رخ اپنے باقی دشمنوں کے بارے میں تفتیش کروانے کی طرف چلا گیا کہ جب امامہ غائب ہوئی اس دن وہ لوگ کہاں تھے۔ ایک بار معلوم پڑ جائے میری بہن کو کس نے اغوا کیا، اگر میں نے اسے نہ تڑ پایا تو میرا نام میر حماد نہیں۔ وہ سب کو باور کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، دیوانگی تھی، ایک عزم تھا۔ یہ بات سچ تھی، اس کی گاؤں میں بہت بے عزتی ہو گئی تھی۔ کافی لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کے حق میں تھے، لیکن کئی لوگ اس کے خلاف بھی ہو گئے تھے۔ کئی لوگ امامہ کو معصوم سمجھ کر اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسے اغوا کروایا گیا ہے، اور کچھ کا ماننا تھا وہ خود بھاگ چکی ہے۔ دن گزرنے لگے اور امامہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک رات میر حماد دیر تک اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، دکھ اور اذیت تھی۔ امامہ کا 5 مہینے گزرنے کے باوجود کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس لڑکے کی بھی اب شادی ہو گئی تھی جس سے امامہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اسے اپنا یہ دشمن بہت طاقتور محسوس ہو رہا تھا، جس نے اپنی کارروائی کا کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا جو مجھے میری بہن تک پہنچا دے، وہ دعا کر رہا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اب تو امی کی بھی کالز آ رہی تھی، وہ اسے گھر بلا رہی تھی، مگر اسے گھر میں گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کی شدت سے یاد آ رہی تھی، اسی لیے وہ ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اب اس کے دل میں آیا وہ گھر واپس جانے سے پہلے اپنے کھیتوں کا جائزہ لے لے کہ وہاں کتنا کام ہو چکا ہے۔
وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنا رخ کھیتوں کی طرف کیا۔ جو ہی وہ کھیتوں کے قریب پہنچا اسے 2 لوگ نظر آئے جنہوں نے ایک بڑے سے ڈنڈے پر آگ لگائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اسے کھیتوں کی طرف اچھال دیا۔ کھیتوں میں آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چپکے سے نکل گئے، مگر اس بار وہ ثبوت چھوڑ گئے تھے۔ میر حماد کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ زیاد کے بھیجے ہوئے تھے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ کھیتوں میں آگ لگ چکی تھی، لیکن اس کی حکمت عملی سے آگ نے کھیتوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا اور کھیت محفوظ رہے تھے۔ اپنی ناکامی پر زیاد تڑپ کر رہ گیا۔ حماد کو کہیں نہ کہیں شک پڑ چکا تھا کہ شاید امامہ کے قصے میں بھی زیاد کا ہاتھ ہوگا، مگر اسے ثبوت نہیں مل رہے تھے۔ بغیر ثبوت کے وہ زیاد کو سزا نہیں دلوا سکتا تھا۔ اس دوران اچانک سے زیاد کی بہن آیت کے رشتے کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ اسے پتہ چلا وہ لوگ آیت کی میر سجاد سے شادی کرنے لگے ہیں۔ میر حماد دنگ رہ گیا، کیونکہ میر سجاد 40 سال کا تھا اور پورے گاؤں کا جاگیردار بھی تھا۔ اس کا شمار گاؤں کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں ہوتا تھا۔ لاہور شہر میں بھی اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ میر سجاد نے اپنی پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ وہ غیر قانونی کام کر کے پیسہ کماتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس کا پیسہ حرام کا تھا۔ یہ سب باتیں آیت کے باپ اور بھائی کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس معصوم سی کم عمر لڑکی کی شادی اس جیسے خطرناک، ظالم، جابر اور سفاک انسان سے کروا رہے تھے۔ یہ بات میر حماد کے لیے تشویشناک تھی، اور وہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کے باپ نے یہ صرف دولت کی ہرس کی خاطر کیا تھا۔ امیر ہونے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے زیادہ امیر ہونے کی خاطر انہوں نے آیت کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب حماد کے آدمیوں نے اسے یہ خبر دی کہ امامہ کے اغوا کے پیچھے زیاد کا ہی ہاتھ ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں زیاد، اس بار منہ کے بل تم گرو گے۔ اس نے فیصلہ کیا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ آیت کو اس کے ڈیرے کے اس خفیہ کمرے تک پہنچا دیں جس تک صرف حماد کی رسائی تھی۔ اس کے حکم کے بعد چند دن کے اندر اندر انہوں نے نہایت رازداری سے آیت کو بھی اٹھوا کر میر حماد کے ڈیرے پر پہنچا دیا، جہاں حماد نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ اس کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اس بار زیاد کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس نے آیت سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ کبھی اس کی میر سجاد سے شادی نہ کر سکیں اور ان کا خواب ادھورا رہ جائے۔ اس نے آیت سے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی تھی کہ اسے یہ خبر بھی ملی تھی کہ زیاد نے امامہ سے نکاح کر لیا ہے۔ آج نکاح کے بعد اس نے پورا ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ لاہور جائے گا اور زیاد کا وہ گھر ڈھونڈے گا جہاں اس نے امامہ کو قید کیا تھا۔ جب وہ لوگ زیاد کے گھر پہنچے تو انہیں امامہ مل گئی۔ وہ روتے ہوئے حماد کے گلے لگی تھی۔ اپنی بہن کو یوں کمزور اور اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اس نے امامہ کو اپنے ایک خاص دوست کے گھر پہنچا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا زیاد کو یہ پتہ چلتا کہ حماد خود امامہ تک پہنچا ہے۔ جب زیاد کئی دن بعد لاہور واپس آیا اور اس نے جب امامہ کو گھر سے غائب پایا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ زیاد امامہ کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسے گاؤں میں بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ میر حماد کے گھر پر وہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ میر حماد کا رویہ زیاد سے پہلے کی طرح تھا، جس سے زیاد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر حماد امامہ تک نہ پہنچا بھی ہوگا تو امامہ کو لازمی اپنے ساتھ لایا ہوگا اور امامہ نے اسے زیاد کی سچائی بھی بتا دی ہوگی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد حماد خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے لگتا ہے امامہ حماد کو کبھی ملی ہی نہیں، بلکہ یہ کسی اور کی سازش ہے۔ کسی اور نے امامہ کو میرے گھر سے اٹھوایا ہے۔ کہیں کسی ڈاکو وغیرہ کا کام تو نہیں؟ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ یہ سچ تھا، اس نے امامہ سے نکاح صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ حماد سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔
उसे तड़पाना चाहता था, मगर अब उसे उमामा अच्छी लगने लगी थी। वो डर गया कहीं उमामा को किसी डाकू वगैरह ने ना उठा लिया हो। वो परेशान हो गया। शहरों में इस तरह के केसेस आम थे। उसकी रूह फना हो गई थी। वो उमामा को ढूंढने के लिए मजीद जिद्दोजहद करने लगा। आयत का रो रो कर बुरा हाल था। अपना दुख वो किसी को नहीं सुना सकती थी। किस तरह सबको बताती कि उसके कज़न ने उसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है। उस दिन उसे कुछ लोग उठाकर हमाद के डेरे पर ले गए थे। वो बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसका सर भारी हो रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जब उसने मीर हमाद को अपने सामने पाया तो उसे खुशी हुई। वो समझी कि मीर हमाद उसे बचाने आया था। हमाद भाई, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लें। पता नहीं कौन लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं। वो उसके करीब आकर बोली तो हमाद तंजिया हंसा और उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया। मैंने ही तुम्हें उठवाया है और तुम इस वक्त मेरे ठिकाने पर मौजूद हो। वो संजीदगी से बोला तो आयत शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका हमाद भाई? प्लीज़ मुझे घर जाना है, वो तड़प कर बोली और खौफ के मारे दीवार से जा लगी। वो उसके करीब आने लगा और उसके इर्द गिर्द अपने बाजू फैलाए और दीवार पर अपने हाथ रख दिए ताकि वो उसके हिसार से ना निकल सके। उस वक्त हमाद की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, जुनून था। आयत के लिए उसके कज़न का ये रूप अलग ही कुछ था। वो डर रही थी और जब हमाद ने उसे निकाह की बात की तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। हमाद भाई, आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। प्लीज़ मुझे जाने दें। वो डर कर रोने लगी। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि हमाद उसे निकाह करने का क्यों कह रहा है। वो अच्छी तरह जानती थी हमाद के घर वालों से उसके अब्बू और भाई के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अगर तुमने निकाह ना किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगी। वो उसके सर पर अब पिस्तौल तान चुका था। आयत डर गई। अपनी जान बचाने की खातिर उसने इस निकाह की हामी भर ली, क्योंकि वो जान से नहीं जाना चाहती थी। तुम अब मेरी बीवी हो, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। इसलिए अब मीर सज्जाद से तुम्हें शादी कैसे रोकनी है ये तुम्हें सोचना है। और हाँ, मेरा नाम मत लेना, बल्कि सबको तुम ये कहोगी कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया है और तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। वो उसे धमका रहा था और आयत डर के मारे रो रही थी। इस नाजुक सी लड़की को हमाद की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा था और क्यों कर रहा था। आयत अपने निकाह के बारे में किसी को क्या बताती? जानती थी कि अगर किसी को पता चला तो वो इसे जान से मार देंगे। उसके घर वाले तो पहले ही उसे हकारत भरी नज़रों से देखते थे, उससे नफरत करते थे, उसे बुरा समझते थे। अगर उसके निकाह का पता चल जाता तो वो उसे जिंदा दफन कर देते। उसकी सच्चाई पर कोई यकीन ना करता। घर में उसकी मीर सज्जाद से शादी की तैयारियां उरूज पर थीं और वो दिन रात परेशान फिर रही थी। फिर उसे एक यही हल नजर आया कि अगर मीर हमाद खुद अपने आयत से निकाह का एतराफ़ करते हुए सबको सच्चाई बताएगा तो आयत को बेकसूर समझकर उसके माँ बाप और घर वाले माफ़ कर देंगे। इसलिए वो घर वालों से छुपकर मीर हमाद के डेरे पर आ गई। प्लीज़ हमाद, सबके सामने कबूल करें कि आपने मुझसे निकाह किया है, वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरे बाबा साईं और भाई वो मेरी जान ले लेंगे। प्लीज़ सबको बता दें कि मैं बेकसूर हूँ। वो उसके आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। उसे रोता और इल्तिजा करता देखकर एक पल के लिए मीर हमाद का दिल नरम हुआ, मगर फिर जब उसे याद आया कि उस ज़ियाद ने उमामा के साथ क्या किया है तो उसका दिल सख्त हो गया। यहाँ से जाओ आयत और अपनी शादी रोकने की कोशिश करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से बोला और वहाँ से जाने को कह दिया तो वो रोती हुई घर आ गई। उसके पास अब एक यही ऑप्शन था कि वो अपने घर वालों को सच बता देती। अगर सच ना बताती तो उसका निकाह मीर सज्जाद से हो जाता
और ये निकाह शरई और कानूनी तौर पर होता ही नहीं। वो सारी उम्र अपने रब की गुनहगार होती। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। सबसे तकलीफ दे बात तो ये थी कि उसे अपना जुर्म भी मालूम नहीं था कि आखिर हमाद उसके पीछे क्यों पड़ गया था। जहाँ तक उसे अपने कज़न हमाद का मालूम था तो वो बहुत संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। आयत को याद नहीं था कि कभी उसने हमाद से बराह रास्त बात की हो। उसका भाई ज़ियाद हमाद से नफरत करता था। इन लड़ाइयों की वजह से वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते भी नहीं थे। अब आयत की शादी में एक माह रह गया था। आज मीर सज्जाद बजाते खुद अपने मुलाजमों के हमरा हवेली आया। उसके इर्द गिर्द उसके मुलाजमों की लाइन लगी हुई थी। आज वो निकाह की डेट फाइनल करने आया था। वो बार बार निगाह उठाकर आयत को देख रहा था और उसकी निगाहों से आयत बहुत नर्वस हो रही थी। मीर सज्जाद की निगाहों में खबासत थी। वो घूर घूर कर उसे देख रहा था। आयत को वो पहले से ही पसंद नहीं था। शादी की तारीख तय करके वो अपने मुलाजमों के हमरा जा चुका था। ज़ियाद आज खामोश खामोश था। उमामा की फिक्र उसे तकलीफ दे रही थी। वो बदल रहा था। उमामा की मोहब्बत उसे बदल रही थी। अम्मा साईं, मुझे मीर सज्जाद से शादी नहीं करनी। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। उन्होंने अपनी पहली बीवी को भी मार दिया था। मुझे उनसे खौफ आ रहा है। आयत ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी माँ से कहा था कि शायद इस तरह उसकी शादी रुक जाती, मगर उसे हैरत तब हुई जब उसकी माँ कहने लगी कि तेरी मर्जी या पसंद नापसंद हमारे लिए अहमियत नहीं रखती, इसीलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कर। बड़ा खुश रहेगी तू। करोड़ों की जायदाद है उसकी। अगर इज्जत चाहती है तो तुझे चुप करके हमारी बात माननी है, वरना तेरे बाबा साईं गैरत के नाम पर मार डालेंगे तुझे। अम्मा साईं गुस्सा करने लगी थी। वो सहम कर रह गई। अपनी तरफ से तो वो उस निकाह को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर किसी जानिब से उसे कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा था। आज भी उसने मीर हमाद के डेरे पर जाने का सोचा। जब वो वहां पहुंची और हमाद को बताया कि वो ये निकाह रोकने में नाकाम हो गई है, तो हमाद लब भेंच गया। वो उसके करीब आया और अपने सख्त हाथों से उसकी ठोड़ी ऊपर की और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। झूठ बोल रही हो ना तुम? कहीं मीर सज्जाद की दौलत के आगे तुमने भी तो घुटने नहीं टेक दिए। तुम उसकी दौलत देखकर उसे शादी करना चाहती हो ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। आयत शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। उसने रोना शुरू कर दिया। वो ऐसी नहीं थी जैसी वो उसे समझ रहा था। उसके नज़दीक पैसों की कभी कोई अहमियत नहीं रही थी, और मीर हमाद समझ रहा था कि वो दौलत की खातिर सज्जाद से शादी को नहीं रोक रही। उसके आंसू देखकर हमाद जी भर कर बेजार हुआ। फिर उसे खौफजदा करने के लिए उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया और उस पर दबाव डालने लगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। उसकी बात सुनकर आयत की रूह फना हो गई। वो लड़की जिसने हमेशा अपने घर की दुनिया देखी थी, किसी से बात नहीं की थी, आज हमाद का सामना करके उसकी बातें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वो कांपते हुए मीर हमाद के डेरे से निकली और उसे वहां से सिकंदर साहब के मुलाजिम ने देख लिया। फौरन उसने सिकंदर साहब को शिकायत लगाई थी। ये सुनते ही सिकंदर साहब का खून खौल उठा और उन्होंने आयत पर हाथ उठाया और सख्ती से कहा, अगर अब उसने घर से कदम बाहर निकाले तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ज़ियाद शहर में मौजूद था। उसे इस वाक़े का इल्म नहीं हो सका। आयत की माँ अपने शौहर से डर गई और आयत के बाल खींचते हुए कहने लगी, क्यों गई थी तुम मीर हमाद के डेरे पर? अम्मा साईं, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है। मैं उनसे बात करने गई थी, उसने रोते हुए बताया। तो उसकी माँ समेत सिकंदर साहब के होश उड़ गए। वहां के मुलाजमों ने भी ये बात सुन ली थी। क्या बकवास कर रही हो? सिकंदर साहब ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कमरे से चले गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है।
उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि आयत झूठ बोल रही है। उमामा, तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ। अपनी मौजूदगी का कहीं तो सबूत दो। वो दुख से अपने लाहौर वाले घर पर आया था। कुछ दिनों से वो यहीं मौजूद था। उसे अब तक उमामा का इंतज़ार था कि शायद वो यहाँ आ जाए। वो इन दिनों में खो गया जब उसके ताल्लुकात सुलेमान ताया से अच्छे होते थे। वो लोग आपस में मिलते थे। ज़ियाद उमामा से बात करना और उसके साथ खेलना उसे अच्छा लगता था। जब वो बड़ी हुई तो उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, मगर उन्हीं दिनों लड़ाई की वजह से उन सब का आपस में मिलना मिलाना ख़त्म हो गया। जूं जूं ज़ियाद बड़ा होता जा रहा था, उसे उमामा की कमी महसूस होती थी। जब भी वो उसे देखता था, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थीं। जब उसे उसकी शादी की खबर मिली थी तो उसे बहुत गहरा सदमा हुआ था। वो अपने कमरे में आकर सिगरेट फूंकने लगा। काश उमामा, हम लोगों के ताल्लुकात इस कदर ख़राब ना होते तो हम सब मिलजुल कर रहते। मैं तुमसे शादी कर लेता। वो दुख से सोच रहा था, फिर वो सब कुछ भूलने लगा। मगर जब उसने मीर हमाद से बदला लेने की ठानी तो उसकी निगाह उमामा पर गई और उसने फैसला किया कि वो एक तीर से दो शिकार करेगा। उमामा की सूरत में हमाद को जिल्लत दिलवाएगा और उमामा से शादी करके उसे अपना लेगा। उसने ऐसा ही किया। उमामा से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। उमामा को बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो ये निकाह नहीं चाहती थी। उसे अपने घर जाना था, मगर ज़ियाद उसे प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। इन 5 माह में ज़ियाद ने खुद को काफ़ी बदल लिया। वो उमामा से प्यार से बात करता, उसका हर तरह से ख्याल रखता। देखो उमामा, तुम भी इस रिश्ते को अब कबूल कर लो। हम दोनों ही अब अपने ख़ानदान एक कर सकते हैं, उनकी आपस में सुलह करवा सकते हैं। अगर तुम चाहती हो बरसों की अदावत ख़त्म हो और सब एक हो जाएं, तो तुम्हें ये निकाह कायम रखना होगा। उसने उमामा को समझाया था। उमामा थोड़ा बहुत समझ गई थी, मगर उसे अभी भी ये सब कबूल नहीं था। ज़ियाद उसे समझाकर वापस गांव चला गया, मगर जब अगली बार आया तो उमामा कहीं मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ उमामा अपने भाई हमाद के दोस्त के घर रह रही थी। यहाँ पर उसके दोस्त की भाभी थी, माँ और बहनें थीं, जिनके साथ रहकर उमामा थोड़ी बहुत टेंशन से बाहर आ गई। स्ट्रेस की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए। हमाद ने उससे कहा था वो तब उसे लेने आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। उसने वादा किया था कि वो उसे ज़ियाद से तलाक दिलवाएगा। उमामा ने तब उससे कहा था कि वो ज़ियाद के साथ नहीं रहना चाहती, मगर अब वो उसकी कमी महसूस कर रही थी। ये बात सच थी कि ज़ियाद जितना भी बुरा था, मगर निकाह के बाद उसने उमामा का बहुत ख्याल रखा था। अम्मा साईं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं मीर सज्जाद से निकाह नहीं कर सकती। हमाद मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर चुके हैं। उनसे तलाक लिए बिना मैं कैसे दूसरा निकाह कर सकती हूँ? वो हिम्मत से अपनी माँ से पूछने लगी। उनकी गुफ्तगू सिकंदर साहब सुन चुके थे। मीर हमाद को यहाँ बुला कर लाओ। अगर आयत की बात झूठ हुई तो उसे मार दूंगा। सिकंदर साहब ने एक मुलाजिम को हुक्म दिया। आयत का सांस रुक कर रह गया था। उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मीर हमाद संजीदगी का लबादा ओढ़े घर आ गया। हमाद, आयत का कहना है तुमने इससे ज़बरदस्ती निकाह किया है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने सख्ती से पूछा तो हमाद साफ मुकर गया। चचा जान, आप तो जानते हैं आपके घर वाले मेरे कितने दुश्मन हैं। पहले आपका वो बेटा ज़ियाद मुझ पर इल्ज़ाम तलाशी करता रहता था और अब आपकी ये बेटी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मीर हमाद की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गए। कहीं आयत को भी ज़ियाद ने तो ये करने का नहीं कहा। सिकंदर साहब कुछ सोचकर नरम पड़े कि कहीं ये उनके अपने बेटे की चाल तो नहीं। इसलिए उन्होंने मीर हमाद की बात सुनकर उसे जाने दिया और कुछ सोचकर ज़ियाद को कॉल करने चले गए ताकि उससे इस बारे में पूछ सकें। आयत सदमे में आ गई कि मीर हमाद ने खुद उससे छुप कर निकाह किया था
और अब सबके सामने मुकर गया था। बेशरम लड़की, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आई? जलील करवा दिया हमें। अम्मा साईं गुस्से में बोली। उन्हें डर था कि अब पता नहीं सिकंदर साहब गुस्से में क्या करेंगे। उन्होंने आयत के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब तो उस दिन कमरे से निकलेगी जिस दिन तेरा मीर सज्जाद से निकाह होगा। ज़ियाद सही कहता था, तू भी अपनी डाइन पुप्पो पर गई है। वो भी अपने यार के साथ भाग गई थी और हमें पूरे गांव में जलील करवा दिया था। हमारे मुंह पर कालक मली थी। इससे पहले कि तू भी वही करे, मुझे तेरी अकल ठिकाने लगानी होगी। वो आयत को घसीट कर अपने साथ ले जाने लगी। अम्मा साईं मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूं। मीर हमाद ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। मैं बेकसूर हूं। वो तड़प कर बोल रही थी, मगर अम्मा साईं ने उसे कमरे में बंद कर दिया। सिकंदर साहब ने ज़ियाद को फ़ोन करके आयत के हवाले से पूछा तो वो हैरान रह गया। उसने तो आयत से ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर सिकंदर साहब का खून खौल उठा। जब ये खबर मीर सज्जाद तक पहुंची तो उसने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मीर सज्जाद खुद ही रास्ते से हट गया। वो खुशी से सोच रहा था। अब उसका दिल चाह रहा था वो इसी खुशी में अपनी बहन से मिल ले। जब वो अपने दोस्त के घर गया तो उसे अपनी छोटी बहन उदास उदास लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? वो उससे प्यार से पूछने लगा तो वो ज़ियाद के बारे में बात करने लगी। भाई, ज़ियाद बहुत बदल गया है। अब मुझे एहसास हो रहा है और मेरा दिल चाह रहा है मैं उसे एक मौका दे दूं। भाई, मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती। उमामा की बात सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया और फिर उमामा ने उसके साथ अपने ख्याल का इजहार किया कि शायद इस तरह हमारा ख़ानदान आपस में एक बार फिर एक हो जाए। ठीक है उमामा, मुझे सोचने का मौका दो, मीर हमाद ने कहा था। उसने भी ये गौर किया था कि कुछ अरसे से अब ज़ियाद खामोश रहने लगा था। उसे तंग नहीं करता था, ना अब किसी चीज़ को लेकर उससे बदतमीज़ी करता था। इसका निकाह आज ही होगा। अब इस मनहूस लड़की को मैं किसी मुलाजिम के साथ रुखसत कर दूंगा। कालक मलदीस ने मेरे मुंह पर, मीर सज्जाद के सामने। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गया। अब इसकी यही औकात है कि नौकर से शादी करके इसे घर से धक्का दूंगा मैं। सिकंदर साहब गुस्से से बोल रहे थे। ज़ियाद हैरत से ये सब देख रहा था। उसे अपनी बहन की कदर आई तो वो रोकने लगा। बाबा साईं, ऐसा मत करें, एक बार आयत की बात सुन ले। मगर आज सिकंदर साहब बहुत गुस्से में थे, इसीलिए वो किसी की नहीं सुन रहे थे। मुलाजमों ने ये खबर मीर हमाद को जाकर बताई। हमाद साहब बड़े साईं आयत को सज़ा देने के लिए उसका निकाह किसी मुलाजिम से कर रहे हैं। ये सुनकर हमाद के होश उड़ गए। मुलाजिम ने बताया कि वो ये सब खुफिया तौर पर कर रहे हैं ताकि मीर सज्जाद तक ये खबर ना पहुंच जाए। हमाद फौरन हवेली भागा। वो ज़ियाद की वजह से उससे नफरत करता था, उससे बदला ले रहा था, मगर अब उसका दिल भी पिघल गया था। वो उसकी गैरत थी और अब उसकी बीवी थी। जब उमामा ने उसे ज़ियाद के बारे में बताया तो उसका दिल पिघल गया और उसने फैसला किया था वो भी आयत को इज्जत से अपनाएगा और ख़ानदान में सबकी सुलह करवा देगा। जब वो हवेली पहुंचा तो निकाह शुरू हो चुका था। आयत को निकाह पर निकाह करते देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। अब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की कितनी कमज़ोर थी। अपने लिए कुछ भी नहीं बोल सकती थी, अपने लिए लड़ नहीं सकती थी और डट नहीं सकती थी। अभी मौलवी साहब निकाह के बोल बोल रहे थे जब वो गुस्से से पागल होता आयत की जानिब बढ़ा और उसे खींच कर उठाया। ये निकाह नहीं हो सकता, जल्दी से आप सब लोग जाएं यहाँ से। मौलवी साहब, आप भी जाएं यहाँ से। सब ऐरे गैरे लोग मुझे यहाँ नजर ना आए। वो गुस्से से बोल रहा था और सब शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। उसके रोब से ही सब लोग वहां से जाने लगे। ये क्या हरकत है हमाद? सिकंदर साहब गुस्से से चीखने लगे। हमाद ने आयत की आंखों में देखा जहां बेशुमार दुख थे,
اذیت تھی اور تکلیف تھی۔ اسے آج اس نازک سی لڑکی پر بہت ترس آیا۔ چچا جان، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آیت میری بیوی ہے اور میں نے اسے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حماد آج اعتراف کر گیا تھا۔ آیت بھی شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کبھی حماد یوں سب کو سچ بتائے گا۔ سکندر صاحب غصے میں آ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سخت قدم اٹھاتے، زیاد بیچ میں آ گیا۔ بابا سائیں غصہ چھوڑ دیں اور آیت کو حماد کے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب زیاد نے حماد کا ساتھ دیا تو وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کو ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ زیاد جو میر حماد کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ انہونی ہی تھی۔ کیوں ساتھ دے رہے ہو تم دونوں ان کا؟ دھوکہ دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ اس حماد کی وجہ سے ذلت ہوئی ہے، میرے خاندان میں رسوائی ہوئی ہے۔ وہ چیخ کر بولے تو حماد بھی مزید غصہ برداشت نہ کر سکا۔ چچا جان، اور جو ہمیں زیاد کی وجہ سے رسوائی ملی، اس نے امامہ کو اغوا کروایا اور اس سے نکاح کیا۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حماد کا سوال سن کر سکندر صاحب سمیت زیاد کو دھچکا لگا۔ امامہ کہاں ہے حماد؟ وہ جب ہوش میں آیا تو حماد سے تڑپ کر پوچھنے لگا۔ سکندر صاحب کو گہرا صدمہ پہنچا۔ اتنے میں سلیمان صاحب بھی آ گئے۔ بابا سائیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم سب عداوتیں بھول کر ایک ہو جائیں۔ میں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا اور حسد انسان کو دکھ پہنچاتا ہے، بے چین کرتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، جبکہ پیار اور رشتے انسان کو سکون دیتے ہیں اور خوشی دیتے ہیں۔ زیاد نے گہری بات کی تھی اور اس کی باتوں نے سب کے دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سب لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ سلیمان صاحب اور سکندر صاحب بھی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ مجھے معاف کر دینا حماد، حسد میں آ کر میں بہت کچھ غلط کر بیٹھا، لیکن اب عقل آ گئی ہے مجھے۔ زیاد دل سے اس کے گلے لگا تھا۔ اسے امامہ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ وہ امامہ کو بخیر و عافیت اس گھر سے لے گیا تھا۔ امامہ کے بارے میں سن کر زیاد کو سکون ملا۔ وہ واقعی اسے اتنی محبت کرنے لگا تھا، آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ حماد بھی زیاد کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ آیت بھی رو رہی تھی۔ جب حماد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل دھڑکا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حماد کے لیے تشکر تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی کہ اس نے وقت پر آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اگر وہ نہ آتا تو جانے کیا ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امامہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اسی مہینے ہم بچوں کی رخصتی کر دیں گے، دھوم دھام سے، سکندر صاحب نے کہا۔ سب لوگ ہی خوش ہو گئے تھے اور حویلی میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئی تھیں۔ حماد کے ساتھ آیت کو رخصت کر دیا گیا تھا اور امامہ زیاد کی دلہن بن کر آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے دل سے ایک دوسرے کی نفرت نکال کر صلح کر لی تھی، اور یوں انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔